Carl-Pearson's coefficients matter. Carl-Pearson's coefficients matter for finding a degree of correlation between two different variables. We had already discussed that in our previous session. Now, today we are supposed to discuss about the rank correlation method. Now, what is rank correlation? How it is different from the Carl-Pearson's coefficients method. So first we need to understand that what is rank correlation method. Then we'll be dealing with its two different types. उसके लिए भी दो methods हैं. We'll be discussing that. And up to that, जहाँ तक जब हम वो दोनों बार discuss करेंगे, that stage at that level, I can say that we're done with the third unit halfway. हम third unit में आधा portion discuss कर चुके हैं. ठीक है. So my screen is visible to all of you. Is it Mansi? Better screen visible? Yes, sir. Good. Yes, sir. Let me access my screen. Mansi कोई echo नहीं आ रहा है ना? I log in from two different devices और दूसरी device पास ही में है. तो echo वाला कोई problem नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ दूसरी बार आपको सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं है ना? नहीं सर. Good. Last के शायद दो example इसमें बाकी थे. Yes. Okay. Have you guys gone for the example 8? Example 8 हमने discuss कर लिया था, नहीं किया था शायद Tuesday को. Hello. Girish, क्या अच्छा बेटा? Example 8 discuss थी तो Girish? I don't think so. Okay. जल्दी से एक बार एग्जाम्पल 8 देख लेते हैं. थोड़ा हटके है ये अगले जितने भी क्वेश्चंस थे उससे. अब तक जो भी क्वेश्चंस हमने किए, जितने भी क्वेश्चंस किए, उसमें बात क्या थी? द थिंग्स वी वर डिस्कसिंग दैट आई गेस वी वर हैविंग टू डिफरेंट वेरिएबल्स x एंड y एंड x और y के लिए कुछ डेटा था मेरे पास. मान लीजिए 3 4 5 कुछ भी डेटा. हाँ बेटा, वो एक टेबल अब तक मैं दे रहा था सारे क्वेश्चंस में. वी वर हैविंग वन ऑफ द टेबल, वन ऑफ द डेटा सेट फॉर x एंड y. अब तक पिछले क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ करूँ तो. और उन दोनों के बीच में वी वर सपोज टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y. उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला थी, दो या तीन अलग अलग फॉर्मूला थी, पर बेसिक फॉर्मूला तो यही थी, covariance of xy divided by standard deviation of x, standard deviation of y. अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने दो फॉर्मूला बनाई है. दैट इज वन ऑफ देम इज समेशन x minus x bar y minus y bar divided by and root of summation x minus x bar the square, और सिमिलर वही टर्म y के लिए. इज इट? एक ये फॉर्मूला थी. दिस इज नथिंग बट द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस. ऐसी एक दूसरी फॉर्मूला थी, r equals to summation x y minus summation x summation y divided by n, और डिनोमिनेटर में वही वाला टर्म. Is it? This is also the simplified version of the actual formula of the of the Carl-Pearson. अब ये तो सारी बातें हम कर चुके हैं. We are quite good how to deal with this. इसके साथ कैसे काम करना है, इसके साथ कैसे काम करना है. It will be your choice कि आपको कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है. ठीक है. If you wish to change the scale of the data, you may. If you wish to change the origin of the data, you may. आपके डेटा का आप स्केल चेंज कर दो, ओरिजिन चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. The coefficient of correlation will not affected due to that. ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक. But now observe this question, example 8. Read this first of all. एक बार देख लीजिए क्या है ये. A computer operator, while calculating the coefficient between two variables x and y of 25 pairs of
obtain the following constant. Obtain the following constants. कोई 25 numbers of data a person is having, जैसे कि ये मान लीजिए, तो चलिए इसको मैं इरेज कर दूं एक बार. Suppose a person is having 25 different data set related to two different variable x and y, and that they have not provided that particular data with उसने हमको वो डेटा नहीं दिया है, that is not provided, that is not given, कि क्या है डेटा 1 2 3 या तो 10 15 20 25 कुछ भी हो पता नहीं, पर हमको क्या पता है, we are having the number of data set that is n, हमको पता है कि x वाले जितने भी डेटा है उसका टोटल है 125, उसका स्क्वायर निकाल के अगर मैं टोटल करूं, summation of x square, that is 650, that is also provided. Sigma y, that means addition of all the data related to y is 100. Similarly, summation of y square is 460, and summation of xy is 508. That is what provided. ये दिया हुआ है, ये है हमारे पास जो भी है. अब इससे आगे, it was later discovered that at the time of checking that he had copied down two pairs as 614 and 8,6, while the corrected pair was 8,12 and 6,8. गलती कर दी उस बच्चे ने, उस आदमी ने, उस इंसान ने. क्या इश्यू क्या है? At the time of checking, उसको पता चला, सपोज कि जो भी डेटा है 25 number of data are there. Suppose we are not having all that 25 data with us here, but उस डेटा सेट में एक पैर उसने लिखी है 6,14, x6 y14, another is 8,6, कहीं पे और एक थी 8,6. This is what his attended while finding this particular all the figures. पर जब कोई एक दूसरे आदमी ने, दूसरे सुपरवाइजर ने उसको एग्जामिन किया, उसको चेक कर रहे थे, उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे, तब जाके पता चला कि भाई गलती है, आपने जो डेटा इनपुट लिया हुआ, आपने जो डेटा कंसिडर किया हुआ उसमें गलती है. ये 6,14 नहीं था, आपको लेना था उसकी जगह पे, इसकी जगह पे आपको लेना था, x की जगह पे 8 लेना था और y की जगह पे 12 लेना था. सो ये गलत है, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 8 है, और ये 14 वाला भी गलत है. इंस्टेड ऑफ 14 he was supposed to take 12, तो ये भी गलत है, इसकी जगह 14 नहीं 12 होना चाहिए था. ये एक गलती उसके पकड़ में आई, और दूसरी ये गलती पकड़ में आई कि that was उसने जो कंसीडर किया था वो that was 8,6, but actually it was 6,8. सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ पक्का पड़ेगा, पक्का उससे फर्क पड़ेगा. 8,6 की जगह पे 6,8 था, माने कि यहाँ पे 6 लेना था, and here he was supposed to take 8. Is it? Now जब क्रॉस चेक किया गया तो इतना पता चला कि भाई इतनी गलती कर दी है कोई एक आदमी. अब हो सकता है ना, suppose we guys are habituated to deal with we guys are habituated to identify the coefficient of correlation using Kelsey nowadays. हम अब Kelsey से कंफर्टेबल है. आपको, आपके पास अगर मैं XY वाला सारा डेटा दे दूं, then you guys will give me the coefficient of correlation R within I can say 1 minute. एक ही मिनट में आप लोग मुझे कैल्सी से दे देंगे, if I'm not concerned about the calculation. तो वो कैल्सी तो दे सकता है बिल्कुल आसानी से. क्या करना है आपको? कैल्सी को रीसेट करना है, फिर उसको रिग्रेशन मोड में लेके जाना है, सारा डेटा एंटर करना है. एंटर करने के बाद आप SIFT 1 और SIFT 2 से सारी जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकेंगे. मैंने वो आपको सिखाया हुआ है. अब उस पूरी प्रोसेस में अगर डेटा एंटर करने के वक्त अगर मैं गलती कर दूं, if I committed one or two mistake while I was entering the data in the Kelsey, तो Kelsey तो भाई वो तो जो मैंने रॉन्ग डेटा एंटर किया उसके लिए याद दे देगा मुझे. इज इट ना? अब मुझे वो करेक्ट करना है
जो मैंने गलती की, मुझे पता चल गया कि ये दो गलती थी भाई. one of the mistake was here, other mistake was here. क्या गलत डेटा हमने एंटर किया हुआ वो पता है कि हमने एंटर किया हुआ 614 जो कि नहीं था, उसकी जगह पे हमको एंटर करना था 8,12, और दूसरा एक एंटर हुआ है 8,6 जिसकी जगह पे एक्चुअली होना चाहिए 6,8. ऐसे सो पता है हमको गलती का है, तो क्या अब हम करेक्ट कर सकते हैं उसे? तो अभी क्वेश्चन ये है कि इसको करेक्ट कीजिए. करेक्ट करने के बाद ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. अच्छा, ये बहुत आसानी से हो सकता है अगर आपके पास बाकी के सारे ऑब्जर्वेशन भी हो. यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन है. व्हाट वाज ये दो डेटा सेट है, मानी कि टोटल 25 थे, तो बाकी के अगर 23 डेटा सेट 23 डेटा सेट्स आर विद अस, अगर वो हमारे पास है तो इट विल बी इजी. पर वो तो नहीं है. हमारे पास क्या है? ये इंफॉर्मेशन से सारी. अब ये इंफॉर्मेशन summation x 125, summation x square 650, summation y 100, summation y square 460 and summation x y 508. अब ये जो सारे टोटल्स उसने निकाले हुए उस बंदे ने, वो कब निकाले होंगे? जब उसने ये रॉन्ग, ये गलत वाला डेटा एंटर किया हुआ है. सो ये समेशन x जो है, जिसका समेशन x मानी कि x का पूरा टोटल उसने लिखा हुआ है 125. तब वो 125 में ही उसने एक्चुअली कैलकुलेट किया होगा 6 and 8, जबकि मुझे कैलकुलेट करना था 8 6. अब आप देख सकते हैं 6 की जगह पे 6 प्लस हो जाएगा, 8 की जगह पे 8 प्लस हो जाएगा, तो समेशन x में कोई फर्क नहीं आएगा. पर देखिए क्या y में भी ऐसा होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जब वो समेशन y, टोटल ऑफ y फाइंड कर रहा होगा, तो देखिए क्या है, टोटल ऑफ y है 100. अब टोटल ऑफ y 100 अगर है, तो जो रॉन्ग डेटा था उसमें y एक उसने 14 ऐड किया होगा, एक 6 ऐड किया होगा, इन दोनों का टोटल हो रहा है 14, 6 मानी कि 20. अब यहाँ भी है 12, 8, 20 हो रहा है, तो सिग्मा y में भी फर्क नहीं होगा, वो टोटल तो 100 ही. तो क्या इससे हम कंक्लूड कर सकते कि नहीं ये सारे टोटल सही है? चलो, ये दोनों चेंज करने से ये सारे टोटल्स में कोई चेंज नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये सिग्मा x स्क्वायर और सिग्मा y स्क्वायर पे इफेक्ट रहेगा, एज वेल एज समेशन ऑफ एक्स वाई पे भी इफेक्ट करेगा. क्यों? यहाँ पे 8 into 6 48, पर यहाँ पे देखिए 14 into 6 का आंसर अलग होगा, 12 into 8 का आंसर भी अलग होगा. So what we are supposed to do, first of all we will be correcting this data set. अगर डेटा सेट पूरा नहीं है तो हम पूरा डेटा सेट करेक्ट नहीं कर पाएंगे, पर at least we need to correct this summations, all these summations. ये सारे जो टोटल है ना, उसको करेक्ट करना है. and once we are done with that, if we are able to correct all that totals, वो सारे टोटल्स अगर हम करेक्ट कर पाए तो खत्म हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा. क्योंकि आर के लिए वो जो फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सी फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे पता है आपको? क्या ये सारे टोटल देख के आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी चाहिए टू आइडेंटिफाई आर? कौन बताएगा मुझे? अगर इतना डेटा है आपके पास, इतना ये सारे ऑब्जर्वेशन से, ये सारे फैक्ट्स है अगर आपके पास, और अगर आपको आर आइडेंटिफाई करना है, तो कौन सी फॉर्मूला जानी चाहिए? कौन बताएगा मुझे? मानसी तू बता दे चल. मानसी या तो फिर पथिक या तो फिर स्मिथ. एनी ऑफ यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो द फॉर्मूला ऑफ आर which we will be applying to solve, to identify the R. Am I audible to all of you? Hello? Smith, are you there? Mansi, are you there? Hello? यस सर. I don't think so. I'm audible. मानसी नहीं संभળો તો બેટા તો કેમ આટલી વાર લાગે છે રિપ્લાય કરવામાં? ના સર, એકચ્યુઅલી મારે છે ને અહીંયા નેટવર્ક ઇશ્યુ છે, તો માઇક ઓન કરવામાંથી નથી થયું. સ્મિત તું ત્યાં છો કે નથી? બિપિન, સ્મિત, દેવાંશ, દીપેન, those who are attending the session, kindly drop your name right now on the chat box. Abhi ke abhi. Reply me on the chat box, else I'm gonna make you guys out of the session.
In such a case, when I'm asking that some of the question, then you need to reply, okay? Instantly. Don't wait for 2-3 minutes. कि सर अगर ये कोई शादी नहीं है कि भाई मैं बोलूँ कि चल भाई चल आके तुझे गरबा खेलना है, वो 3 बार बोले कोई आके तब आपको बोलना है, ऐसा नहीं है, ठीक है? Keep this thing on your mind. नहीं समझ में आ रहा तो बोल दीजिए भाई, इट्स ओके, किसी और तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, पर वो चुप बैठना, दिस इज नॉट डन. चलिए, who will help me to fix the formula for R? Who will help me to fix the formula for R? Sir, Any of you? Yes. Who's that? Yes, please. कौन बात कर रहा था? सर यशंक. हाँ यशंक, बोल बेटा चल. सर वो जो सेकंड वाला है ना वो यूज करेंगे. हाँ बोल 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 बोल, वो क्या था याद कर. तू थोड़ा याद कर, थोड़ा मैं करवा दूंगा. सर थोड़ा तू याद कर, थोड़ा मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं. चल. सर समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस summation of xy minus summation of x summation of y divided by n और होल all डिवाइड divided by under root of सन एक्स स्क्वायर minus summation of x all square, होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन. the similar term for y, is it ना? अब जहाँ पे यहाँ पे x है वहाँ पे y कर दे, that is summation y square minus summation y the whole square divided by n. अब ये तो पता चल रहा है कि भाई हमको ये फॉर्मूला के साथ काम करना पड़ेगा, पर फॉर दैट व्हाट वी नीड, देख हमको चाहिए करेक्टेड समेशन एक्स वाई. वी नीड करेक्ट समेशन एक्स समेशन वाई, देन आफ्टर करेक्टेड समेशन एक्स स्क्वायर करेक्टेड समेशन वाई स्क्वायर. ये हम क्यों यूज नहीं कर सकते? देखिए ये सारा डेटा हम क्यों यूज नहीं कर सकते? बिकॉज फर्स्ट वी नीड टू बी श्योर कि ये सारे जो फैक्ट्स है, ये जो सारे जो फिगर्स है वो करेक्ट होने चाहिए, तभी वो मुझे आर की वैल्यू करेक्ट मिलेगी. हाँ या ना? So first of all, let's try to correct all that figures. जैसे कि हमने अभी देखा कि सिग्मा x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिग्मा y में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्या सिग्मा x स्क्वायर में भी फर्क नहीं पड़ेगा? क्या सिग्मा y स्क्वायर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या सिग्मा xy फिर से 508 रहेगा? नहीं रहेगा. चलिए, क्यों नहीं रहेगा? लेट मी शो यू. आई नीड टू इरेज दिस. किसी को डाउट है इसमें? अब तक जो बात की उसमें किसी को डाउट है? क्वेश्चन समझ में आया? मैं पिछले 7 या 8 मिनट से सिर्फ क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा था. आर यू गेटिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली? यस सर. इफ यू गाइस आर कंफर्टेबल तो मैं सॉल्यूशन के लिए जाऊं. अच्छी बात है, चलो. नाउ व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? n is 25. n में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि दो डेटा गलत एंटर हुए थे, पर उसकी जगह पे कुछ करेक्ट डेटा एंटर करना है ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 25 रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ करेक्टेड एक्स वाई, करेक्टेड समेशन एक्स वाई, वो मैं कैसे करूंगा? जो मुझे दिया हुआ है व्हिच इज एक्चुअली इनकरेक्ट, उसमें से जितने गलत ऑब्जर्वेशन है उसको निकाल दूंगा, सम ऑफ इनकरेक्ट एक्स एंड आई विल ऐड द करेक्टेड एक्स. गलत एक्स जो हमने एंटर किए थे वो निकालेंगे, सही एक्स जो अब एंटर करने वो हम घुसाएंगे फिर से. ठीक है? अब याद कीजिए इनकरेक्टेड समेशन एक्स क्या था? 125 था. इज इट? दिस इज इनकरेक्ट एज वी आर जस्ट, हम अभी हमको ये पता है कि कुछ गलत डेटा एंटर हुआ है तो ये भी गलत होगा. सो आई विल राइट 125 और दैट व्हिच इज एक्चुअली इनकरेक्ट फॉर अस राइट नाउ. अब ये दो एंट्री गलत है, 6,14 और 8,6, ये गलत है. तो उसमें जो x है ना, दैट इज 6 एंड 8, ये दो x थी. तो इन दोनों का एडिशन जो है 6 + 8, दैट विल बी श्योरली कैलकुलेटेड एंड दिस इंक्लूडेड इन 125. तो उसको निकाल दो एक बार. 6 + 8 हो जाएगा 14, निकाल दिया. अब जो सही है वो घुसाना है. अब सही पैर ये थी 8,12 एंड 6,8, उसमें से x क्या है? 8 6. 8 6 मानी कि 8 + 6 14 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. दोनों का फर्स्ट पेयर होगा ना, 6 14 और 8 12. सॉरी सर दोनों का फर्स्ट पेयर का करेगा ना, पहले 6 और 14, 8 और 12.
6 और 14, फिर से एक बार तुषार मेरे साथ रहे, बोल क्या बोल रहा है, मैं मुझे नहीं समझ में आया। अभी हम क्या हम करेक्ट बोल कर रहे रहे कि थे? सर 6 और 14 और इनकरेक्ट 6 और 14 होगा पहला पेयर का, और 8 और 12 करेक्टेड होगा ना। 6 और 14 फर्स्ट पेयर है जो कि गलत थी। Is it? हाँ, और 8 और 12 होगा ना फिर। हाँ, 6 14 की जगह पे क्या आएगा, ये 6 14 निकल जाएगा, 8 उसकी 12 जगह पे हम क्या रखेंगे 8 12, 8 ठीक है। 12। हाँ तो अभी हम क्या कर, देख मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, सिग्मा एक्स में कर रहा हूँ, इज इट, एक्स की ही बात कर रहा हूँ। देख तू जब लिख रहा है, तू सारा डेटा प्रिपेयर करेगा तो ऐसे करेगा ना, जब टेबल में तू डालेगा ये सारी वैल्यूज तो इस तरीके से डालेगा। 6 14 एक तूने एक्चुअल डाला होगा, पहला जो डाला होगा जो गलत है, फिर तूने डाला होगा 8 6, ये दोनों एंट्री थी उसमें जो कि गलत है, हाँ ना। अब इसको हटा के 6 14 को हटा के आपको क्या डालना है, 8 12, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, हाँ या ना। हाँ 8 6 की जगह पे क्या है, यहाँ पे 6 होना चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए। दिस इज व्हाट द करेक्शन इज, यस और नो, गेटिंग मी? तुषार समझ में आ रहा है बेटा? हाँ हाँ हाँ। हाँ, अभी जब समेशन एक्स की बात हम कर रहे हैं, सिग्मा एक्स की, तो इसका टोटल होगा ना सिग्मा एक्स, दिस विल टोटल ऑफ दिस पर्टिकुलर रो, इज इट? तो देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं, देख 8 + 6 सर पहले हो जो गया आया सर, होगा समझ गया। वो -14 हो जाएगा, +14 होगा, क्योंकि वो दोनों बेस आपस में इंटरचेंज ही हुए, उन दोनों का टोटल तो 14 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे। तो करेक्टेड समेशन एक्स विल बी वंस अगेन 125। वो ये दोनों गलती, ये इतनी सर गलती सम करने ऑफ से वो, दोनों पेयर का लिए ना सबमिशन, दोनों हाँ इनकरेक्टेड पेयर का लिया और दोनों करेक्टेड पेयर का सबमिशन लिया। यस, सिर्फ हम दोनों सिंगल पेयर करेक्टेड सोच के इन, रखा था पहले। यस दोनों करेक्टेड इनकरेक्ट में से सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं, वाई की अभी बात नहीं की, ठीक है ना। समझा तू क्यों मैंने वाई की हाँ बात नहीं की? क्योंकि अभी हम सिग्मा एक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए उसमें वाई नहीं आएगा ना। समझा? पक्का समझा कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तुषार नहीं समझ में आ रहा तो बोल देना, हाँ बेटा। गुड सर समझ गई सर। गुड। अब जैसे हमने एक्स की बात की, वैसे ही तो वाई की बात होगी। सिग्मा वाई एक्चुअली क्या दिया हुआ है, 125 दिया हुआ था, देखिए, नहीं सॉरी 100 दिया हुआ था, सिग्मा वाई हमको 100 दिया हुआ है, दिस इज 100। अब उसमें भी गलती है, उसमें मैंने कैलकुलेट किया होगा 14 + 6, तो मैं 14 6 का एडिशन है वो निकाल दूंगा और 12 + 8 अंदर घुसाऊंगा, पर अनफॉर्चुनेटली अभी अभी आई कैन से फॉर्चुनेटली 14 + 6 भी 20 हो रहे, 12 + 8 भी 20 हो रहे, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से मैं 20 निकाल दूं फिर 28 करूं, तो सिग्मा वाई में भी फर्क नहीं पड़ेगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा डेटा चेंज करूं तो हो सकता है सिग्मा वाई में भी फर्क पड़े, ठीक है ना। सो मुझे आगे बढ़ने दीजिए। यस, नीड टू इरेज दिस। यस, देखिए करेक्टेड वाई, करेक्टेड एक्स, 125 में से वो दोनों निकाल दिए, फिर से जो एक्चुअल वाले थे जो सही थे वो घुसा दिए, पर इन दोनों का टोटल सेम ही हो रहा है, 14 14, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव निकल जाएंगे, 125 रहेगा। सिमिलरली आई विल गो फॉर सबमिशन वाई, वाई को करेक्ट करूंगा, सर वाई स्क्वायर का भी सेम ही होगा ना फिर, देखते एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का भी सेम ही होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तुझे लगता है सेम होगा? क्या तुझे लगता है? मतलब सम ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, क्योंकि हो सकता दोनों है में कि, नंबर सेम ही है ना। देखते चल साथ में रहे, ठीक है, अभी तो नंबर सेम ही है ना। चल साथ में रहे, देखते हैं, ठीक है। वाई का समझ में आ गया सभी को? मैं सिर्फ तुषार से बात नहीं कर रहा हूं, और किसी से बात कर रहा हूं। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों को करेक्ट किया। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? ड्रॉप अ मैसेज ऑन द चैट बॉक्स राइट नाउ, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? गुड। अब हम करेक्ट करने जाएंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। देख सिग्मा एक्स स्क्वायर, जो एक्स वाली जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास, जो एक्स वाली इंफॉर्मेशन है, एक्स और वाई जो करेक्टेड, ये मुझे इरेज नहीं करना चाहिए था, यहीं पे रखना चाहिए था। जो रॉन्ग डेटा था दैट वाज 6,14 एंड 8,6, उसकी जगह पे जो एक्चुअल डेटा मुझे एंटर करना था वो कुछ इस तरीके से है। इंस्टेड ऑफ 6 इट मस्ट बी 8, instead of this 8 it must be 6, and instead of 14 it should be 12, and instead of 6 it should be 8। ठीक है, अब एक सिग्मा वाई हमने करेक्ट कर दी, ये वी आर डन विद दिस, बट
वी नीड टू हैव एक्स स्क्वायर ऑल्सो, एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए। तो जब पुराना एक्स स्क्वायर जो उस बंदे ने जब गलती की थी तब एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया होगा, तब उसने क्या किया होगा, यहाँ पे जो 6 था ना, जो कि रॉन्ग था, जो कि गलत था, उसका टोटल यहाँ पे लिखा होगा, उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा होगा 36, और इस 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा होगा 64। अब हमें इसको करेक्ट करना है। अब 36 जो कि गलत एंट्री है बिकॉज ऑफ द 6, अब उसकी जगह पे सही एंट्री है, दैट इज 8, और 8 का स्क्वायर होगा 64। तो ये 36 की जगह पे 64 आना चाहिए, और यहाँ पे जो 64 है जो कि 8 का स्क्वायर है वो भी गलत है, उसकी जगह पे 36 आना चाहिए, इज इट ना। तो देखिए ये 36 में निकाल के 36 और एक घुसा रहा हूँ, 64 निकाल के 64 एक और एक घुसा रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समेशन एक्स स्क्वायर विल बी वंस अगेन 650, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर क्या समेशन वाई स्क्वायर भी यही होगा? नहीं होगा। देखिए यस, नहीं सर, अलग होगा। पहले क्या था, पहले सिग्मा वाई स्क्वायर था 460। यस, डेटा इज डिफरेंट। पहले जब हमने गलत ऑब्जर्वेशन अंदर डाला था, गलती की थी डेटा एंटर करने में, तब सिग्मा वाई स्क्वायर था। इसको मैं एक्स स्क्वायर को निकाल दूं एक बार, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला कॉलम बना लूं, इट विल बी गुड। वाई स्क्वायर वो डेटा में दिया हुआ है कि ये सिग्मा वाई स्क्वायर उसने 460 कैलकुलेट किया हुआ है। जब उसने किया तब ये गलत वाली एंट्री, मानी कि 14 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। बताइए मुझे 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। ये दो एंट्री उस वहां पे कैलकुलेशन में आई होगी, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि 14 की जगह पे 12 है, तो 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 196 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए 144। यस, और 8 की जगह पे क्या होना चाहिए? 144 यहाँ पे होना चाहिए 64। इज इट? अब देखिए 5 मिनट बेटा, हम सो 196 और 36 इन दोनों का टोटल कीजिए और इन दोनों का टोटल कीजिए, वो सेम नहीं है, इज इट ना। सो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे इस 460 में से ये दोनों निकालने होंगे, इन दोनों को मैं निकाल दूंगा, एंड देन आई विल ऐड बोथ दिस। यही मैंने किया, देखिए यहाँ पे 460, 14 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर में निकाल रहा हूं, और 12 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर अगर मैं ऐड कर रहा हूं, तो जो पिछली बार था 460 वो अब हो गया 436, चेंज आया, इज इट ना। श्योरली। अब ऐसे ही सिग्मा एक्स वाई में भी चेंज आ सकता है। देखिए कैसे, जब गलत एंट्री थी, उस गलत एंट्री के साथ अगर मैं x इंटू वाई निकालूं, तो गलत एंट्री थी 6 और 14, तो 14 6 जो भी हो रहा है कितना होगा? 14 6 84, हाँ? तो इससे एक बार बोल दे, 14 6 कितना होता है? 96 होगा ना। 96 इज इट? हाँ, चल 96 14 तो का होगा, टेबल फिर बोल, 12 9 का 108 होता है। 14 का टेबल का बोल जल्दी डिफरेंस से। इधर 10 का डिफरेंस होता है। ओ सर प्लीज सर, हम 12 का 14 6 12 का कितना होगा? 84, यस। एंड ये गलत था, इज इट ना? ये गलत था, क्यों? क्योंकि वो गलत के साथ हमने गिना हुआ है। 14 6 दोनों गलत एंट्री थी, उन दोनों का टोटल उसने किया होगा, वो दैट वाज 84, तो ये गलत है, इसको निकालेंगे। और नीचे नीचे गलत क्या था? 8 6, 8 इंटू 6 48, वो भी गलत था। अब एक्चुअल एंट्री क्या थी? यहाँ पे एक्चुअल एंट्री थी 8, यहाँ पे 12, सो 12 एट्जा, अब बताओ 12 एट्जा कितना होगा? 96, जैसे कि आपने बताया, इज इट 96। एंड यहां पे सही वाला एंट्री होगी 8 6 मानी कि 48, तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चल 48 की जगह पे 48 ठीक ही है, पर ये 84 ही, ये 96 है। तो जब जितना भी उसका टोटल है, उसने दिया हुआ कि टोटल 508 उसने कैलकुलेट किया था, उसमें से मैं 84 निकाल दूंगा प्लस 96 करूंगा। अब ऐसा करने से ये 508 जो है वो चेंज होगा ही होगा। क्या चेंज हो रहा है? देखिए ये हो रहा है चेंज, दैट 508 विल बी 520, इज इट? अब देख सकते हैं आप, इन दोनों में चेंज आ गया। जब हमने करेक्ट किया डेटा, ये दोनों फिगर्स में चेंज आ गया। अब हमारे पास पूरी सारी करेक्टेड वैल्यूज है, एंड वी मे गो फॉर द, बताइए ये टेबल में यहां से निकाल रहा हूं, किसी को कोई डाउट है?
Are we good? Are we good with this? कितने लोग हैं जिसको ये समझ में आ रहा है? प्लीज बताओ. देवांश, Yes, sir. तुषार, आदित्य, अनुज, आयुष, विपिन, देवांश, दीपेन, गिरीश, यश, मानव, मानसी, निकिता, पथिक, रिद्धि, स्मित, यश, यशांक. Let me erase this particular. इसको एक बार निकाल के मैं आपको पूरी एक्चुअल वैल्यू दे दूं. करेक्टेड वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोलिशन. देखिए वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि यही सारी बात मेरे पास है. अब सारे जो करेक्टेड वैल्यूज थे वो मैंने डाल दिए. अब वो डालने के बाद जो भी आ रहा है दैट इज 0.97. वही 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 ये सारी कैलकुलेशन वी विल बी डूइंग विद a calculus. So it is not a big deal. It will be very easy for you guys once you are having a corrected data and you are having your information related to the formula which you should use. और वो तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि जितना the data we are having, the kind of data we are having in the question, तो उससे पता चल जाएगी कौन सी फॉर्मूला से ये आर कैलकुलेट करना है. ठीक है ना. सो सारी करेक्टेड वैल्यू यहाँ पे डाल दी, फिर एक कैलसी का यूज किया, जो भी आ रहा है दैट इज करेक्टेड आर. Are we good? Are we good? It is just on the screen. बताइए मुझे कुछ डाउट है, then I'll be discussing. If we are good, then we will be moving for the rank correlation method. I'm just giving you 20 seconds. Please एक बार देख लीजिए और बताइए मुझे कि क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है. Graduation. Okay, so let me move ahead. चलिए अब जाते हम. Our next topic, that is rank correlation. Now, what is rank correlation? Rank correlation क्या है? Let me first of all let me give you some of the information, some of the basic information related to rank correlation, and then हम इसकी दो अलग अलग मेथड सीखेंगे. पर पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि व्हाट इज रैंक कोरिलेशन. रैंक कोरिलेशन जो है वो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से किस तरीके से अलग है, ये भी क्लियर करना जरूरी है. सो आई एम ट्राइंग टू clear this particular word to you. Suppose let a group of n individuals be arranged in order of merit with respect to some characteristic. कुछ n लोग हैं हमारे पास जिसको अरेंज किया हुआ है असेंडिंग या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में with some of the characteristic, might be with its their marks, might be with their talent. Okay, so and the same group would give a different order, rank, different order बोलूँ या तो फिर rank बोलूँ, for different characteristics. Considering the order corresponding to two characteristics A and B, the correlation between these n pairs of rank is called the rank correlation in the characteristic A and B for the group of individuals. अब ये जब मैथ्स वाले सारे
वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ, then the things will be little bit difficult to for you. Might be नहीं होगा ऐसा नहीं है, पर शायद हो सकता है कि सर ये क्या बात कर रहे हो, क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और क्या रैंक और क्या ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, चलिए। लेट मी पिक अ प्रॉपर एग्जांपल। डांस इंडिया डांस कितने देखते हैं? डांस इंडिया डांस कुछ आ रहा था ना, अब तो आ रहा है, नहीं आ रहा है पता नहीं। हेलो आयुधा, मुझे 2-3 लोग चाहिए मेरे, जो भी मेरे साथ बात करे, 2 या 3। म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ। मानसी एक तू अनम्यूट कर दे। लेट मी पिक, अनम्यूट रख अपने आप को। फिर मुझे चाहिए गिरीश। यस सर। गिरीश यहाँ पे आ जा, अनम्यूट रख अपने आप को। गिरीश, पुरोहित, तू है या निकाल दूं? आयुधा, गिरीश आयुधा नहीं है, उसको मैं निकालूंगा। चल स्मित तू अनम्यूट कर दे बेटा। स्मित अनम्यूट योरसेल्फ। स्मित देवानी। अनुज, यस बेटा। हेलो सर। अनम्यूट रे तू અને માનસી બે અનમ્यूट રહ્યો। then Smith is also here. Yes सर स्मिथ हाँ here. Smith मानसी अनुज, Smith मानसी अनुज। ओके Yes. now આપણે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ લઈએ, બાકી છોડી દે બહાર માંગ્યું, ડાન્સ ઇન્ડિયા ડાન્સ નથી ગયો। સપોઝ आई एम हैविंग 3 competitors, 3 participants from the class। 3 लोग हैं हमारे साथ, एक मानसी, एक स्मित, एक अनुज। ठीक है, लेट मी पिक माय पेन। एक स्मित है, पेन आफ्टर मानसी इज देयर एंड अनुज इज हियर। अब इन तीनों के लिए चल मानसी तू बता, अपने पीएस का स्कोर बता, मिड सेम का। सर 17। पीएस में 17 और डीएमएस में और डीबीएम DBS में उसको 19। डीबीएम बोलते हैं ना क्या? हाँ 19। चल स्मिथ अपने मार्क्स बता, दोनों के पीएस के कितने हैं? 24 और डीबीएमएस में 28 हाँ भाई हाँ, अच्छी बात है। अनुज सर 19 अनुज के मार्क्स मैं पसंद करूंगा, रुक जा। अनुज को पीएस में आए 29 और उसको डीबीएमएस में आए हैं 5 तो फेल नहीं करेंगे। चल तुझे 15। ठीक है अनुज, जो भी है तेरा डेटा हमने अपने तरीके से फिल किया हुआ है, ठीक है। अब चल, हाँ अब if I wish to identify the rank correlation between both of them, between this particular characteristic, कि क्या ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक में कुछ कोरिलेशन है, अगर है तो वो कौन से हद तक है। अब अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें, कोरिलेशन की बात करें, तो हमको पता है उसकी रेंज तो -1 से +1 ही है। -1 से कम नहीं हो सकता, +1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा ये दोनों पिक ले सकते हैं, -1 +1। तो ये डिसाइड करना है कि at what extent these 3 students are having a correlation with both this characteristic। अब अगर मैं इस मार्क्स के साथ रैंकिंग दूं, भूल जाइए इस मार्क्स को, रैंकिंग देनी है मुझे कि स्मित, मानसी और अनुज में से कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। जब पीएस की बात कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक की बात कर रहा हूं, तो आई एम योर फैकल्टी, आई विल असाइन द रैंकिंग। किस तरीके से असाइन करूंगा? आपके मार्क्स से असाइन करूंगा। अब अगर इस मिड सेम के मार्क्स से अगर मुझे रैंकिंग असाइन करनी है तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो ये अनुज के मार्क्स जो 29 है ना पीएस में, मैं बोलूंगा तू यू आर द फर्स्ट इन द पीएस। फिर नंबर आएगा स्मिथ का, स्मिथ इज सेकंड क्योंकि उसके 24 है, और फिर मानसी विल बी थर्ड। इज इट ना? मानसी विल बी थर्ड इन दिस पर्टिकुलर रैंकिंग ऑफ पीएस। अब डीबीएमएस में अगर मधु मैम ये करना चाहे तो वो क्या करेगी कि भाई स्मिथ विल बी फर्स्ट क्योंकि डीबीएमएस में स्मिथ को ज्यादा मार्क्स है, फिर मानसी 19 will be second and then after Anuj will be third।
तो देखिए अगर ये रैंकिंग अगर हम देखें ना, स्मिथ सॉरी एक पीएस और एक डीबीएमएस, इसकी रैंकिंग यहाँ पे है स्मिथ, फिर है मानसी और फिर है अनुज। तो उसकी रैंकिंग जो पीएस के लिए थी, स्मिथ की रैंकिंग है दैट इज सेकंड, मानसी इज थर्ड एंड अनुज इज फर्स्ट। While for the DBMS, the ranking is Smith will stand first, Mansi will stand second, and Anuj will stand third. तो देखिए, I'm interested in this particular data. I'm interested in this. अब ये जो मैंने रैंक दिए हुए ना, वो रैंक किस तरीके से दिए? The rank right now, this rank I allotted with the help of in the terms of your midsem marks. वो किसी और तरीके से भी हो सकता है, किसी और तरीके से भी हो सकता है. Now we need to find the associativity between both that. कि भाई इन दोनों के बीच में क्या कनेक्टिविटी है, इसके बीच में अगर कोई रिलेशन है, कोरिलेशन है, तो वो कितनी हद तक है नहीं है, क्या है. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. एक और एग्जांपल लेके बैठू, चलो मैं दे दूं मैं आपको और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिससे कि आपको पता चले कि ये रैंक कोरिलेशन क्या एक्चुअल कहीं पे यूज होता है. हाँ होता है, इट इज वेरी वेरी यूजफुल टर्म. अब आप देखिए, कोई एक रियलिटी शो ले लीजिए. एक तो बता रियलिटी शो मुझे ये आज डांस प्लस, इज इट ना? वो किसका आता है वो डांस प्लस? रेमो का है ना शायद. अनुज, यस सर. मानसी, नहीं तुमने पता सर. किसका है वो डांस प्लस? नहीं देखा सर मैंने. रेमो डिसूजा. रेमो डिसूजा. चल मानसी को पता है. चल अब उसमें 10 हमारे क्लास के 3 कॉम्पिटिटर, तीन स्टूडेंट गए हुए, आप ही 3, स्मिथ, फिर मानसी और फिर अनुज. इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया हुआ डांस इंडिया डांस में, सॉरी डांस प्लस में. और जो रियलिटी शो होता है उसमें एक से ज्यादा जज होते हैं, इज इट ना? तो मान लीजिए पहला जज है दैट इज रेमो डिसूजा, दूसरी है वो गीता माँ, जिसको आप गीता माँ बोलते हैं या फिर शो में वो बोलते हैं. एक दूसरी जज है गीता, एंड थर्ड जज वो कोई एक और ले लो भाई, चलो प्रभुदेवा इज द थर्ड जज. सो ABC आर द जजेस. नाउ दे विल गिव यू द रैंक. जैसे कि स्मिथ आया, उसने अपना परफॉर्मेंस दिया, उसने अपना डांस दिखाया, अच्छी तरीके से दिखाया, परफॉर्म कर लिया. जब परफॉर्मेंस खत्म होगी तो ये तीनों उसको रैंक देंगे, ये तीनों उसको मार्क्स देंगे या तो फिर रैंक देंगे, इज इट? अब उस हिसाब से शायद स्मिथ को रेमो ने फर्स्ट रैंक दिया हुआ, पर गीता को शायद वो पसंद नहीं आया, उसने उसको थर्ड रैंक दिया. और दैट प्रभुदेवा सपोज उसने भी फर्स्ट रैंक दिया, हो सकता है ना. अब सिमिलरली फॉर द मानसी, रेमो फर्स्ट जज ने उसको सेकंड रैंक दिया हुआ है, सेकंड जज ने उसको सेकंड रैंक दिया हुआ है, पर थर्ड जज ने उसको शायद थर्ड रैंक दिया हुआ है. एंड अनुज के लिए फर्स्ट जज ने थर्ड रैंक, बी वाली जज वो अनुज से काफी खुश थी, उसने उसको फर्स्ट रैंक दिया हुआ है, एंड थर्ड जज उसको सेकंड रैंक दे रहे. तब देखिए इन तीनों में फर्क है, इन तीनों की मेंटालिटी में फर्क है. शायद स्मिथ अगर वो हिप हॉप कर रहा है, वो कोई अलग स्टाइल कर रहा है जो कि रेमो को काफी पसंद है, फर्स्ट जज को काफी पसंद है, तो उसको फुल मार्क्स देगा. पर शायद कोई है जैसे कि एक और जज है जिसको क्लासिकल पसंद है और वो स्मिथ जाके वहां पे हिप हॉप कर रहा है, तो उसको कम मार्क्स देगी. इज इट? सो दैट डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि उसको पसंद है नहीं है, उस हिसाब से वो मार्क्स देंगे, उस हिसाब से वो रैंकिंग देंगे. सो नाउ फ्रॉम दिस डेटा इफ यू विश टू आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ जज के जिसके जो लोग सिमिलर है अपने अप्रोच में, क्या मैं बोल सकता हूं ए और सी दोनों सिमिलर है, उसका अप्रोच सिमिलर है? क्या मैं बोल सकता हूं ए और बी का अप्रोच सिमिलर है? क्या मैं बोल सकता हूं बी और सी का अप्रोच सिमिलर है? तो देखने से तो कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई ए और सी का अप्रोच सिमिलर होना चाहिए, पर that we need to prove mathematically. वो मैथ्स के साथ भी प्रूव करना है. वो कैसे करेंगे? वो रैंक कोरिलेशन से प्रूव होगा. कैसे करेंगे? क्या है फॉर्मूला? कैसे डेटा मिलेगा? कैसे उसके साथ डील करेंगे? चलिए मैं लेके जाता हूं उसके लिए. लेट मी डिस्कस दिस थिंग. आप तीनों अपने आप को म्यूट कर दीजिए फिर से. Now for that we are having Spearman's rank correlation coefficient method. अब उसके लिए चाहिए हमको एक मेथड जिसका नाम है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, या तो फिर उसको बोल सकते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड. अब उसमें क्या है? लेट x एंड y बी द रैंक ऑफ
मत देना, ये इतना मैं आपको देके कंफ्यूज क्यों करूँ? रुक जाओ, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही दूंगा, क्योंकि लेट मी पिक माय स्क्रीन। ये सारी थियोरेटिकल पार्ट है, मैंने रखा तो हुआ है, पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यू आर इन द अप्लाइड साइंस। चलिए छोड़ दीजिए, वो फॉर्मूला क्या होगी, चलिए मैं बता दूं आपको। द रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला विल बी, Spearman's rank correlation formula will be R equals to 1 minus 6 sigma d square divided by n into n square minus 1. I request all of you to note down this particular formula. 6 sigma d square divided by n into n square minus 1. This will be the formula we will be dealing with here. अब यहाँ पे कितने टर्म से देखिए, इस फॉर्मूला में एक ही टर्म है, दो ही अननोन है, एक है d और एक है n. Now n तो हमको पता है, n is number of observation, number of observations we are having, and this d will be the difference in ranking, difference in ranking of x and y. So first of all, I'm giving you 10 seconds. Note down this formula over your classwork, over your lab book. कहीं पे भी ये लिख के रखिए। रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, इसकी फॉर्मूला है ये। लेट मी गिव द टाइटल इवन, रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला, रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन हम दो मेथड स्टडी करने वाले हैं। दिस इज स्पीयरमैन्स, दिस इज Spearman's rank correlation formula. जल्दी से ये लिख लीजिए, नोट डाउन दिस फॉर्मूला। अब इसमें सारे टर्म से वो कैसे डील करेंगे, इसमें दो ही अननोन है। देखिए डी और एन तो पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी सेट है उसके साथ बात करेंगे, पर डी विल बी द डिफरेंस ऑफ रैंकिंग। वो कैसे करना है अभी एक फर्स्ट क्वेश्चन से दिखाता हूँ। अभी गुड, सभी ने वो नोट कर लिया आपने बुक में? लेट मी नो, आर यू डन विद द अनुज, मानसी? नहीं आ रही बेटा आपकी आवाज। तुषार फिर से बोल, आवाज कट गई। तुषार यू आर नॉट? सर डन। ओके डन गुड। बाकी के लोग जल्दी से ये चाहिए, हाँ प्लीज लिखना है। दिवांश, जस, पथिक, मानव, यशांक, बाकी के सो रहे क्या? गिरीश, जस, निकिता, पथिक, रिद्धि, यश, यशांक। ये स्क्रीन में निकाल दूंगा अभी, याद रखिए फॉर्मूला, ठीक है? हाँ, 1 minus 6 sigma d square n into n square minus। और कोई बुक अगर रेफरेंस बुक अगर आप अलग चूज करें तो शायद ऐसा भी होगा, 1 minus 6 sigma d square डिवाइड बाय, अगर ऐसे लिखे हुए n क्यूब माइनस n, तो वो दोनों सही है, ठीक है? बिकॉज ये n जो मल्टीप्लाई किया है n into n square, दैट इज n क्यूब माइनस n। अगर ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे भी तो भी सही है, पर गलती ये मत करना, ये 1 माइनस, ये 1 जो है सेपरेट टर्म है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए। अगर आप जल्दी से लिख रहे हो और 1 माइनस न्यूमरेटर में चला गया तो गलत है, ऐसा कभी नहीं लिखना। देखिए अगर कहीं पे फॉर्मूला ऐसे लिखिए 1 minus 6 sigma d square डिवाइड बाय n into n square minus 1, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये 1 माइनस, ये 1 वाला टर्म न्यूमरेटर में नहीं है, इट इज सेपरेट, 1 माइनस दिस पर्टिकुलर टर्म। ओके, ऐसी गलती मत करना। अगर ये ऐसी गलती करोगे तो आपका आंसर r इक्वल्स टू 12 पॉइंट समथिंग, 15 पॉइंट समथिंग, माइनस 13 पॉइंट समथिंग ऐसे आएगा, क्योंकि हमको पता है r की वैल्यू ऑलवेज 0 पॉइंट समथिंग ही होती है। सो लेट मी गो थ्रू दैट, दिस विल बी द फॉर्मूला। अब ये क्या है, इसकी पूरी थियरी जो है वो मैंने स्किप की है, नहीं चाहिए हमको, इसलिए पहला एग्जाम्पल काफी बढ़िया, चलिए रहिए मेरे साथ। 10 participants in a contest are ranked by 2 judges as follows.
10 पार्टिसिपेंट्स है, कोई एक कंपटीशन में पार्ट लिया हुआ है, 2 जज थे, उन दोनों जजेस ने उसको जो रैंकिंग दी है कुछ इस तरीके से XY। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपके लिए, पहली बार देखना। लेट मी मेक द थिंग्स क्लियर। यहाँ पे जो जजेस है ना, वो द जजेस आर X and Y। Where's my pen? I need to change the color. Wait. Let me pick the red one, which is much visible to all of you. X, Y. Both these are judges. ये दोनों जज हैं जो कि रैंक दे रहे, फर्स्ट थर्ड। अब इसका क्या मतलब है? 3 1 मैं 3 4 ही लिखूंगा यहाँ पे, 7 4 और देन आफ्टर आई एम राइटिंग 5 5। देखिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ यहाँ पे, देन आफ्टर 4,6 तो 4,6 यहाँ पे आएगा, 4 6 देन आफ्टर 6 9। बस यहाँ तक डिस्कस करता हूँ। What is this? This is the ranking. These are the ranking. अब यहाँ पे ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। देखिए ये 1,3 वाला ऑर्डर, ये पैर मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दूँ 1 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Is it? So in that way, order in this ordered pair, order of this ordered pair are not important, but this order is very very important. 1,3 है उसको आप 3,1 नहीं कर सकते, ये गलत है। 7,4 है उसको आप 4,7 नहीं कर सकते, ये गलत है। 4,6 को आप 6,4 नहीं कर सकते, गलत होगा। ठीक है, चलिए अब दिस आर द रैंकिंग्स। यहाँ पे 10 लोग, वो पार्टिसिपेंट का नेम जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ है। चलिए हम उसको लेबल कर दे रहे पार्टिसिपेंट A B C D E F, ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। पार्टिसिपेंट में से A को, ए वाला पार्टिसिपेंट माने कि अनुज सपोज, उसको जज X ने फर्स्ट रैंक दिया हुआ है और जज Y ने उसको थर्ड रैंक दिया हुआ है। वाइल B4 कोई भी ले ले भाई, B4 बिमल शायद, उसको फर्स्ट जज ने थर्ड रैंक दिया हुआ है जबकि सेकंड जज ने उसको फर्स्ट रैंक दिया हुआ है। देखिए डिफरेंस है ना, दैट डिफर्स पर्सन टू पर्सन। 2 लोग बैठे सामने, किसी को पसंद आया, किसी एक जज को पसंद आया, दूसरे जज को ना भी पसंद आया, हो सकता है ऐसा। So that is due to that particular interest towards that particular subject of that judges. जैसे कि C को फर्स्ट जज ने 7th रैंक दिया हुआ है जबकि सेकंड जज ने उसको 4th रैंक दिया हुआ है। So this is the data we are having. Now what we are supposed to do? यहाँ पे इन सेक्शन वाली कॉलम निकल गई है एक, रुकिए मैं ऐड कर दूं। लेट मी ऐड दिस, वो यहाँ पे शायद इसके नीचे चली गई। फाइंड रैंक कोरिलेशन between 2 judges X and Y. We are supposed to find rank correlation between 2 judges X and Y. कि X और Y ये दोनों की मेंटालिटी किस हद तक सेम है या तो फिर डिफरेंट है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास रैंकिंग है एंड वी आर गुड विद दैट, अगर रैंकिंग नहीं होगी तो हम रैंकिंग निकालेंगे। पर इस क्वेश्चन में हमारे पास रैंकिंग है, अब रैंकिंग कैसे निकालेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाऊंगा। नाउ लेट मी शो द टेबल what we will be doing. हमारी फॉर्मूला क्या है? Spearman's rank correlation formula is that is 1 minus 6 sigma d square divided by n into n square minus 1. This is our formula. Is it ना? अब इसमें 2 ही टर्म है अगर आप देखें तो ठीक से। एक तो है n, मानी कि कितने कॉम्पिटिटर है, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे लिखा है 10 पार्टिसिपेंट्स आता है। सो n की वैल्यू होगी 10, ये फिक्स है। नाउ वी नीड टू हैव d स्क्वायर। व्हाट इज d? नाउ d इज डिफरेंस इन द रैंकिंग। तो ये दोनों जो रैंकिंग है ना मेरे पास, ऑलरेडी आई एम हैविंग रैंकिंग राइट नाउ,
मेरे पास रैंक है उसके, हो सकता है कि यहाँ पे रैंक ना हो और मार्क्स दिए हुए, अगर मार्क्स दिए हुए देन वी विल डिसाइड द रैंक, तो उस मार्क्स के हिसाब से हम पहले रैंक डिसाइड करेंगे। वंस वी आर हैविंग रैंकिंग तो उसका डिफरेंस देना हमको 1 3, इन दोनों का डिफरेंस होगा 1 - 3 दैट इज -2, 3 - 1 that will be 2, 7 - 4 it will be 3, 5 - 5 0, 4 - 6 -2, 6 - 9 -3। इस तरीके से मैं 10 जो कॉम्पिटिटर है, पार्टिसिपेंट्स है, उन सभी के लिए डिफरेंस निकालूंगा। देन आई विल गो फॉर डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा, बहुत ही आसान है, 4 4 9 0 4 9, एंड उसका जो भी टोटल होगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा डी स्क्वायर, समेशन डी स्क्वायर। तो चलिए दिखाऊं मैं आपको पूरा वो कैलकुलेशन, पूरा वो टेबल किस तरीके से करना है। यस, देखिए पहले जज एक्स रैंक बाय फर्स्ट जज एक्स, रैंक बाय सेकंड जज वाई, वो वही डेटा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। नाउ आई एम जस्ट यूजिंग that I'm just calculating that D, which is difference in the ranking. 1 - 3 हो गया -2, 5 - 5 हो गया 0, फिर यहाँ पे 8 - 2 हो गया 6 + 6 is it? अब इसका समीशन का कोई, इसका एडिशन कभी मत करना, कोई मतलब नहीं इसका, इसकी जरूरत ही नहीं है हमको, कभी भी नहीं है। What we need D स्क्वायर। ओके, एक बात खास ध्यान रखिए, अगर कोई सिग्मा डी कर ले और उसका स्क्वायर निकाले और उसको सिग्मा डी स्क्वायर की जगह पे लिख दे तो ये गलत है, वो दिस आर टोटली डिफरेंट। ओके, सो डी का स्क्वायर करना है पहले, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, वैसे 5 -5 का स्क्वायर 25, 4 1 36, जो भी आ रहा है इसका टोटल आया 96। I'm just supposed to replace that 96 over here. I'm just supposed to replace that n equals to 10 over here. इनकी वैल्यू जो 10 है उसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में रिप्लेस करेंगे, एंड कैलकुलेटिंग दैट, उसको कैलकुलेट करूँ 96 10 into 10 square minus 1, because n is 10, simplify करूँ that is 0.418. This is what the rank correlation between two judges x and y. Are you getting this? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बताओ? Drop a message on the chat box right now. Drop a message on the chat box right now whether you are getting this or not. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? Take your time. I'm giving you 30 seconds. पूरा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर एक बार देख लीजिए, फिर बताइए। जितने भी अटेंड कर रहे हैं सारे लोग रिप्लाई करेंगे आफ्टर 30 seconds. सर Yes, please. सर अगर 3 ऑब्जर्वेशन होते तो भी ऐसे ही करते, x - y - z, अगर तीसरा z होता तो। x minus y, तीन माने कि 3 जजेस ना? हाँ सर। नहीं, वैसे नहीं करेंगे। In that case the question will be different. जैसे अभी एग्जांपल 10 उसी के ऊपर आएगा, वेट कर। अगर 2 से ज्यादा जजेस है इस क्वेश्चन के लिए, इस सिचुएशन के लिए, नंबर ऑफ जजेस इज मोर देन 2, तो क्या करेंगे वो भी आएगा, अभी इसी स्लाइड में आएगा, रुक जा, ठीक है रुक जा। आई नीड टू आंसर वन ऑफ द कॉल। देख लीजिए आप एक बार, ये समझ में आ रहा है? सो कोई डाउट किसी को? चलिए अब आपको रिप्लाई करना है, समझ में आया नहीं आया जल्दी से डाल दीजिए चैट बॉक्स में ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। Drop a message on the chat box right now whether you guys are able to understand this or not. How many of you are getting this?
લેટ મી નો. જસ વિરાણીને સમજાય છે? જસ પ્રોપર સમજાય છે બેટા? સંભળાય છે? સમજાય છે? અનુજને સમજાય છે, આયુષને સમજાય છે, જસ, માનવ, યશાંક, માનસી, સ્મિત, ગુડ ટુ ગો, નિકિતા ગુડ. નિકિતા અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ બેટા. નિકિતા. Yes, sir. Getting this properly, all the things. Yes, sir. पहला जो था वो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट्स हाँ मेथड सर. थी, हाँ और सर. अब जो कर रहे हैं वो है रैंक कोरिलेशन मेथड. ठीक है ना? Yes, sir. Good, 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 good. So let me move ahead now. Next example. देख चल, one of the question from you guys were that कि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा जजेस हो तो क्या करेंगे. Now इस सिचुएशन में क्या है, 10 competitors are there in musical test. मान लीजिए वो सारे गामा वाला कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, एंड 3 जजेस बैठे हैं हमारे सामने. जजेस को मैं नाम ऐसे दे रहा हूँ ABC, और इन 3 जजों ने जो रैंकिंग दी है वो कुछ इस तरीके से: रैंक बाय जज A, रैंक बाय जज B, रैंक बाय C. These are the ranking, and what we are supposed to find using rank correlation method, find which pair of judges has the nearest approach to the common liking in the music. Maniki, in other words, I'm asking the question says, the process रहे. नहीं तुषार तेरी आवाज बहुत कट रही है, फिर से बात कर, एक बार फिर से बोल. You are not audible, तुषार. तुषार फिर से एक बार बोल बेटा, या तो फिर चैट बॉक्स में डाल दे. सर प्रोसेस सेम ही रहेगा. प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, हाँ ठीक है, पर क्वेश्चन क्या है ये सोच ठीक से. टेबल के नीचे जो लिखा हुआ है, using the rank correlation method, what we are supposed to find which pair of judges has the nearest approach towards liking in the music. A B C 3 जज है, इसमें से हमको एक पैर डिसाइड करनी है. क्या A और B का अप्रोच सेम है, क्या B और C का अप्रोच सेम है, या तो फिर A और C का अप्रोच सेम. Getting me? Getting me? I'm having 3 different judges in front of me. 10 लोग हैं जिसने पार्टिसिपेट किया हुआ है. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको डिसाइड करना है कि कौन से 2 जज है कि जो जिसकी मेंटालिटी सेम है. क्या A और B है वो, क्या B और C है, या तो फिर A और C है. आपका आंसर क्या होगा? A और B, A and B, या तो फिर आपका आंसर होगा B C, या तो फिर आपका आंसर होगा A and C. Using the rank correlation method, find which pair of judges has the nearest approach to common liking in music. Common liking in music. कौन से 2 जज है जिसका अप्रोच सेम है, जिसका अप्रोच थोड़ा नजदीक है, बिल्कुल सेम ना हो पर नजदीक हो. अब देख, अब रैंक देख, पहले तो एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं. यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स कहाँ है? कॉम्पिटिटर्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास. देखिए, मान लीजिए कि पहला कॉम्पिटिटर ये था, दिस इज अनुज. ये दूसरा है, दिस इज तुषार, दिस इज मानसी, और यहाँ पे कोई और है, दिस इज स्मित, फिर यहाँ पे निकिता है. इज इट? सो ऐसे 10 लोग हैं यहाँ पे. आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर कि अनुज पहले आया है, अनुज का रैंकिंग पहले लिखा हुआ है या लास्ट में लिखा हुआ है. ठीक है, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट. सो इसका मतलब क्या है? अनुज को फर्स्ट जज ने फर्स्ट रैंक दिया हुआ है, जज ए ने फर्स्ट रैंक दिया हुआ है, पर अनुज को ही सेकंड जज ने थर्ड रैंक दिया है, पर अनुज को थर्ड जज माने कि सी जज ने उसको 6th रैंक दिया हुआ है. तो देख, यहाँ पे ऐसा लगता है कि ए और सी, ए और बी थोड़ा नजदीक है, जबकि ए और सी तो काफी दूर है. मानी कि अनुज ने कोई ऐसा सॉन्ग गाया, ये म्यूजिक कंपटीशन है, तो मान लीजिए कि अनुज पक्का कोई सॉन्ग ही गाएगा, म्यूजिक कंपटीशन है तो. फिर अनुज ने गाया था कोई एक क्लासिकल सॉन्ग, कोई एक पुराने जमाने का क्लासिकल सॉन्ग गाया, और जज सी जो है उसको वो लेटेस्ट वाला म्यूजिक पसंद है, हिप हॉप वाला रॉक म्यूजिक पसंद है. तो जज ए जिसको कि क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, उसने अनुज को फर्स्ट रैंक दिया है, पर जज सी ने उसको 6th रैंक दिया हुआ है. देख डिफरेंस है यहाँ पे दोनों की मेंटालिटी में, जज ए और सी की मेंटालिटी में डिफरेंस है.
बी और सी की मेंटालिटी में भी डिफरेंस है, ए और बी की मेंटालिटी में भी डिफरेंस है। अब इसी की बात अगर हम निकिता के लिए करें तो निकिता को पहले जज ने थर्ड रैंक दिया हुआ है, पर थर्ड जज ने उसको फर्स्ट रैंक दिया हुआ है, देख, क्योंकि शायद उसने कोई हिप हॉप वाला सॉन्ग, कोई लेटेस्ट फास्ट ट्रैक सॉन्ग गाया होगा फास्ट म्यूजिक के साथ, तो जज सी को वो पसंद है, तो उसने शायद उसको फर्स्ट रैंक दे दिया, जबकि ए ने उसको थर्ड दिया हुआ है, बी ने उसको सेवेंथ रैंक दिया हुआ है, उसको नहीं पसंद आया होगा शायद। अब यहाँ पे देख ये वाला ऑब्जर्वेशन देगा। सपोज दिस इज फॉर द प्रांजुल, हमारे क्लास का एक और बंदा प्रांजुल, जिसको जज ए और सी ने सेकेंड रैंक दिया है। ए ने भी उसको सेकेंड रैंक दिया है, सी ने भी उसको सेकेंड रैंक दिया हुआ है, पर बी ने उसको 10th रैंक दिया है कि भाई तू तो सबसे लास्ट है, पर इन दोनों को बहुत पसंद आया होगा। इज इट? So this is what the data is. Now we are supposed to identify कि इन तीन जज में से कौन सी ऐसी एक पैर है जो कि जिसका अप्रोच ज्यादा नजदीक है। क्या वो ए और बी जज है, ए एंड बी, क्या वो बी एंड सी जज है, या तो फिर वो जज ए एंड सी है। My first question towards you कि आपको क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? How many of you are getting the question? Unmute yourself and reply. जितने लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो एक बार अनम्यूट करके बताओ मुझे प्लीज। अगर क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है तो आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, देन इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। हाउ मेनी ऑफ यू आर? ये क्वेश्चन पिछले साल जीटीयू में, एमयू में तो नहीं, पर जीटीयू में, एमयू में सब्जेक्ट ही नहीं था, जीटीयू में ये पिछले साल क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा गया था, 7 मार्क्स जीटीयू की फाइनल एग्जाम में। देयर इज द सेम क्वेश्चन आई हैड चूजन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर जीटीयू पेपर। So let me know whether you guys are able to understand the question or not. कितनों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ यशंक, क्या बोला बेटा? क्या रिपीट करूँ? क्या समझ में आया तुझे ये बता। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। पहला दो तो समझा कि जो अभी लास्ट में अपनी कहाँ मैंने से बोला पहला दो क्लोजली रिलेटेड है? क्या डेटा है? तू एक अपने तरीके से एक बार एक्सप्लेन कर, चल मैं तुझे करेक्ट करूँ। अब तक तुझे क्या समझ में आया इसमें से? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सर ये तीन जजेस हैं। कितने कॉम्पिटिटर्स है? हाँ 10 कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, चल आगे बोल। दिस आर द रैंकिंग्स। और फिर अलग रैंक्स दिए हुए हैं। ये क्या है? चल ये पहला मैं बोलूँ उसका आंसर कर। ये शायद अनुज का रैंकिंग है, ठीक है, चलो ये पहला कॉम्पिटिटर अनुज था, उसका रैंकिंग है। तो ये 1 का मतलब क्या हुआ? उसको फर्स्ट दिया। किसने दिया? जज ए ने उसको फर्स्ट रैंक दिया हुआ है, और जज सी ने उसको कौन सा रैंक दिया हुआ है? 6th। गुड। चलिए प्रांजुल है, उसको जज ए ने कौन सा रैंक दिया हुआ है? जज सी ने उसको कौन सा रैंक दिया हुआ है? जज सी ने भी सेकंड। और जज बी ने 10th सर। 10th। चल ये तेरा है शायद। चल ये हियर इज द अनुज, हियर इज द यशांत। यशांत तू यहाँ पे चल। जज ए ने तुझे कौन सा रैंक दिया हुआ है? 9th सर। जज सी ने 10th। पर जज बी ने देख तुझे क्या दिया हुआ है? फर्स्ट दिया। अब हाँ चल ठीक है, तुझे डेटा समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसको रेट कर, नीचे की लाइन रेट कर। Using the rank correlation method, find which pair of judges has the nearest approach towards the liking the music. music. तो कितने जज है मेरे पास? 3 जज। अब इसमें से मुझे एक पैर फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? पैर। अब पैर का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें 2 आदमी होते हैं। Is it? तो मुझे बताना है क्या जज ए एंड जज बी हैज द कॉमन अप्रोच, या तो फिर हो सकता है बी एंड सी का अप्रोच कॉमन हो, या तो फिर हो सकता है ए एंड सी का अप्रोच कॉमन हो। ठीक है, मेरा आंसर इन 3 में से कोई एक आएगा ना बेटा? हाँ या ना? यस। अब यहाँ पे ऑर्डर मायने रखता, मैं ए एंड बी बोल रहा हूँ या फिर बी एंड ए बोल रहा हूँ, दोनों एक ही। हर एक रो वाइज ऑब्जर्वेशन देख, 1 to 10 है देख। जज ए ने किसी को फर्स्ट दिया हुआ है, किसी को सेकंड दिया हुआ है, किसी को थर्ड, किसी को फोर्थ, किसी को फिफ्थ, किसी को सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th। इज इट? हर किसी में 1 to 9, हर एक रो में 1 to 10 रैंकिंग है ये।
तो अब बता मुझे, क्वेश्चन समझ में आया तुझे? क्या हम ढूंढ Yes. रहे हैं? हम ये पैर ढूंढ रहे हैं, कौन दो जज है जिसका अप्रोच नियर है। अब ये देखने से पहले एक बार आप ऑब्जर्वेशन तो देखिए, ये पूरा डेटा एक बार देखिए, ऑब्जर्व कीजिए अपने तरीके से। आप क्या कुछ कंक्लूजन पे आ सकते हैं इस टेबल को देख के कि कौन से दो जज ऐसा है कि जो काफी नजदीक है। आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए इस टेबल को, इस रैंकिंग को ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कौन सी दो रो है जिसमें डिफरेंस काफी कम होगा। यही होगा ना, जिसमें डिफरेंस कम होगा वही जज एक दूसरे के साथ काफी मेंटली एक दूसरे के साथ है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी दो रो है जिसमें कि डिफरेंस काफी कम है? आइडेंटिफाई दैट टू रोज। ऑब्जर्व कीजिए, जल्दी से बताइए। आपको सिर्फ गेस करना है, अभी आपको सिर्फ गेस करना है। I'm giving you 10 seconds, please. Observe the data and guess. I'm waiting for your answer. I'm waiting for your answer. सिर्फ गैस करना है कि क्या आंसर होना चाहिए, ए बी, ए सी या बी सी। Am I audible properly? I'm waiting for your answer, guys. आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ ये डेटा देख के बोलना है कि आपको क्या लग रहा है, कौन से दो जज का अप्रोच नजदीक है। डिफरेंस देखिए, सिर्फ डिफरेंस देखिए। ए और बी का डिफरेंस देखिए, फिर ए और सी का डिफरेंस देखिए, फिर बी और सी का डिफरेंस देखिए, किसमें वो डिफरेंस कम है। जिसमें डिफरेंस कम होगा वही नजदीक होंगे। काफी सारे को लग रहा है ए और सी, एन सी हैज द कॉमन अप्रोच। हाँ, जहां तक मुझे याद है इसका आंसर ए और सी आएगा। पर अब मैथमेटिकली ये कैसे करके देखेंगे उसको? Do we have any method? Yes, we have the method, and that method is Spearman's rank correlation method. Now, what we will be doing in this question, we'll be finding rank correlation using the formula 1 minus 6 sigma d square divided by n into n square minus 1. यही एक फॉर्मूला है जो हम अप्लाई करेंगे। पर कितनी बार अप्लाई करेंगे हम? ये फॉर्मूला 3 बार अप्लाई करेंगे, 3 times. We'll be applying this formula 3 times. एक बार ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम ए और बी के लिए, फिर अप्लाई करेंगे बी और सी के लिए, फिर अप्लाई करेंगे हम ए और सी के लिए। 3 लोगों के लिए अप्लाई करेंगे, फिर आर की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। इन तीनों आर में से जो भी आर 1 के काफी नजदीक है, +1 के काफी नजदीक है। हो सकता है किसी एक का आंसर आ गया 0.3, दूसरे का आंसर आ रहा है 0.4 और तीसरे का आंसर आ रहा है 0.7। तो इन तीनों में से जो भी वैल्यू सबसे बड़ी मानी कि 1 से नजदीक, अगर ये वैल्यू सबसे बड़ी है तो हम बोलेंगे कि ए और सी का अप्रोच काफी नजदीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? जैसे कि हमको पता है कि आर की रेंज क्या होती है, -1 से +1 ही होती है। यहाँ पे हो सकता है किसी एक की वैल्यू नेगेटिव भी आया, हो सकता है कि आई एम गेटिंग आर इक्वल टू -0.4, दैट इज टोटली ओके। हमको पता है कि आर की जो रेंज है वो -1 से +1 है। +1 का मतलब क्या होता है? आर की वैल्यू +1 कब होती है? आर की वैल्यू +1 तब होती है जब रिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव हो। परफेक्ट पॉजिटिव मानी कि वो अप्रोच दोनों का डिक्टो सेम है, तभी वो आर इक्वल टू 1 हो सकता है। आर इक्वल टू -1 कब हो सकता है? जबकि उन दोनों के बीच में रिलेशन परफेक्ट नेगेटिव हो। परफेक्ट नेगेटिव
अब परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव आपको पता है, परफेक्ट पॉजिटिव क्या कब होता है? परफेक्ट पॉजिटिव इफ बोथ द वेरिएबल्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर एक में इंक्रीमेंट तो दूसरे में भी इंक्रीमेंट, अगर एक में डिक्रीमेंट तो दूसरे में भी डिक्रीमेंट। परफेक्ट नेगेटिव कब होता है? बोथ दैट आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तब वो परफेक्ट नेगेटिव होगा। तो अगर आर की वैल्यू +1 हो रही है, माने कि दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ चेंज आ रहा है, दोनों में, और अगर +1 ना मिला और 1 से नजदीक कोई वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स कि उन दोनों में पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन है, पार्शियल पॉजिटिव या तो फिर हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। सो दिस इज द वे वी गाइस गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम ये 3 बार करेंगे, एक बार ए और बी के बीच में, दूसरी बार बी और सी के बीच में, दूसरी बार ए और सी के बीच में। अब वो करने के लिए आई नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला 3 टाइम्स। इसके लिए मैं ये फॉर्मूला 3 बार अप्लाई करूंगा, 3 बार आई एम गोना यूज द सेम फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है वो 3 बार करूंगा, पर अब उसको डिफरेंस उसमें डिफरेंस दिखाने के लिए मैं सिर्फ नोटेशन चेंज करूंगा। मान सकता हूं यहाँ पे मैं लिखूं आर ए बी मतलब रैंक कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, और उसके लिए फॉर्मूला लिखूं 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू n माइनस n स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? ए और बी का जो रैंकिंग है उसका डिफरेंस चाहिए, उसका स्क्वायर निकालना है। अब ये 3 बार अगर मैं करने वाला हूं तो इसको मैं बोल रहा हूं D1। फिर दूसरी बार जब मैं बी और सी के बीच में करूंगा, रैंक बिटवीन बी एंड सी, तब मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। इसको सिर्फ अलग दिखाने के लिए यहाँ पे मैं जो डिफरेंस फाइंड करूंगा और वो बी और सी की रैंकिंग में होगा, सो उसको मेंशन करूंगा मैं D2 से। और तीसरी बार मैं करूंगा जब, तो उसको लिखूंगा 6 सिग्मा डी 3 स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, और ये होगा ए और सी के बीच में। तो ऐसा कुछ करना है मुझे। 3 बार डिफरेंस फाइंड करेंगे, एक बार ए बी के बीच में, दूसरी बार बी और सी के बीच में, तीसरी बार ए और सी के बीच में, फिर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे एंड देन वी विल बी गोइंग फॉर द कैलकुलेशन। लेट मी शो यू। अब ये 3 डिफरेंस पहले तो आइडेंटिफाई कर ले। चल टेबल दिखा दूं एक, देखो ये टेबल, पहली 3 कॉलम वही है जो डेटा में है। This 3 is the ditto same information I am having in the data. यहाँ पे रो वाइज था, मैंने कॉलम वाइज लिखा है। अब पहले सिर्फ आपको यही ऑब्जर्व करना है, D1 and D1 square, that's all. I need to go for R equals to, पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ रैंक कोरिलेशन बिटवीन A and B। तो फॉर्मूला मेरी कुछ इस तरीके से होगी, R equals to 1 minus 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, और मुझे चाहिए ए बी के बीच में, तो आई एम डिनोटिंग इज एज आर ए बी। उसका जो डिफरेंस है उसको मैं D1 बोल रहा हूँ। देखिए 1 और 3 का डिफरेंस क्या आएगा? 1 minus 3 it will be minus 2, here it is। 6 minus 5 it will be plus 1, here it is। ऐसे ही 6 minus 1 it will be, गलती है देखिए यहाँ पे 6 minus 1 it will be 5, it is। तो यहाँ पे भी गलती होगी, डी स्क्वायर में भी surely it will be a mistake, गलती कर दी है कुछ और कहीं पे गलती है, देख ले तो। 5 minus 8 it will be minus 3, yes correct। 10 minus 4 it will be 6, correct। 3 minus 7 it will be minus 4, correct। 2 minus 10 it will be minus 8, correct। 4 minus 2 it will be 2, correct। यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 25 होगा। 7 minus 5 या सॉरी 7 minus 6 1, करेक्ट। और फिर आ गया, यस 8 minus 9 it will be minus 1। So this is my D1, और उसका स्क्वायर मैं करूंगा, that is D1 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 3 का 9, minus 3 का 9, 6 का 36, 4 का 16, 8 का 34, 64, 2 का 4, 5 का 25, 1 1। उसका जो भी टोटल आ रहा है, जो भी टोटल आ रहा है, यहाँ पे वो गलती होगी, शायद तो मिस्टेक होगी, पर इट्स ओके। D1 स्क्वायर जो भी आ रहा है, एंड सिमिलरली उसको जो ये जो D1 स्क्वायर होगा उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस करके वो सारी वैल्यू निकालूंगा, जो भी आएगा that will be rank correlation between A and B। Similarly, when I will be going for B and C, जब मैं B और C के बीच में ये करूंगा तो यहाँ पे डिनोट करूंगा मैं rank correlation BC। तो यहाँ पे मैं D2 लिख दूं, that is just the notation। अब मैं B और C का डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ, 3, 6, 3 minus 6 it is minus 3, 5, 4,
1 वो ये सारा डिफरेंस आइडेंटिफाई किया और उसका स्क्वायर किया यहाँ पे, तो सेकेंड फॉर्मूला जो है वहां पे d2 स्क्वायर मुझे चाहिए, उसका जो टोटल है वो सेकेंड में लिखूंगा हियर एंड आई कैन चेंज दैट। अब ये सारा करने से क्या होने वाला है देखिए, यस ऑब्जर्व दिस, तीनों जो है रैंक बिटवीन एक्स एंड वाई मानी कि ए एंड बी वो आया है -0.21, रैंक बिटवीन वाई एंड जेड वो आ रहा है -0.296 एंड रैंक बिटवीन जेड एंड एक्स वो आ रहा है 0.64। अब आप इन तीनों में से आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी वैल्यू है जो सबसे बड़ी है, मानी कि +1 से सबसे नजदीक है, कौन सी है, दैट इज 0.64। मानी कि जेड एंड एक्स मानी कि जज ए एंड सी, जज ए एंड सी जो कि आपको प्राइमरी ऑब्जर्वेशन करके भी पता चल गया था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 ही कॉम्पिटिटर है। अगर यहाँ पे 1000 कॉम्पिटिटर होते तो मैन्युअली कैलकुलेट करना, वो गेस करना भी आपके लिए आसान नहीं होता। तो अगर वो करना है मैथमेटिकली, तो दिस इज द वे एंड आई कैन से दैट सिंस zx is maximum, the pair of judges A and C has the nearest approach towards the music. Now, are we good with this? देख लीजिए एक बार, अगर आपको पिछली स्लाइड देखनी है तो मैं वो भी दिखा दूं, वरना ये सारी स्लाइड मैंने आपको दे के रखी है, आपके पास व्हाट्सएप में यही है। So are we clear with this? Let me stop the recording first. Close, delete.